سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آج قومی ایئر لائن پی آئی اے کو ایک اور جھٹکا لگا۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے لندن ایئرپورٹ پر پی آئی اے کے طیارے سے ہیروئن برآمد کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ سرچ آپریشن میں یو کے بارڈر ایجنسی کے 30 اہلکاروں اور کھوجی کتوں نے حصہ لیا۔ 3 گھنٹے تک طیارے کا چپا چپا کھنگالا گیا، کموڈ بھی اکھاڑ کر دیکھے گئے۔ ہیروئن طیارے کے خفیہ خانوں سے نکلی۔ اسلام آباد سے اڑے لندن میں پھنسے پاکستان انٹرنیشنل کی پرواز پی کے 785 ایک روز پہلے ہیتھرو لندن پہنچی تو انٹیلیجنس انفارمیشن پر برطانوی بارڈر فورس نے جہاز کو گھیر لیا۔ 30 بندے اندر داخل ہوئے، مسافروں کو جہاز سے اتارا، طیارے کی نشستوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا، کچن کا تیا پانچا کر دیا، باتھ روم میں نصب کموڈز کو اکھاڑ دیا، چھت پر لگے پینلز کو نکال دیا، سراغ رسا کتوں کی مدد سے جہاز کا کونا کونا کھنگال ڈالا اور پھر 3 گھنٹوں کے سرچ آپریشن کے بعد جہاز کے خفیہ کونوں سے سفید پاؤڈر نکل آیا۔ جہاز سے ہیروئن برآمد کرنے کا دعویٰ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے سامنے آیا۔ 4 گھنٹوں کے سرچ آپریشن کے دوران کیپٹن حامد گردیزی سمیت سارے عملے سے بھی پوچھ گچھ ہوئی۔ پاسپورٹس کو تحویل میں لے لیا گیا اور بعد میں صرف پائلٹ کا پاسپورٹ واپس کیا۔ یہ سارا ایکشن ہیتھرو ایئرپورٹ پر ہوا، لیکن اسلام آباد کے بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پی آئی اے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس، اینٹی نارکوٹکس فورس اور کسٹمز نے کس بنیاد پر جہاز کو کلیئر قرار دیا؟ ہیروئن جیسے زہر کے برآمد ہونے کے دعوے سے جو کلنک کا ٹیکہ ادارے پر لگا، اسے مٹانے کی ذمہ داری کون لے گا؟ پی آئی اے کے کپتان حامد گردیزی کا پاسپورٹ برطانوی حکام نے واپس کر دیا ہے۔ وہ کچھ دیر بعد ایک پرواز لے کر وطن روانہ ہونے والے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں لندن میں موجود نمائندہ جیو نیوز ودود مشتاق۔ اس وقت میں ہیتھرو ایئرپورٹ پہ موجود ہوں، جہاں پہ اس وقت اسلام آباد جانے کے لیے ایک طیارہ جو ہے پی کے 786 تیار ہے۔ اس طیارے کو وہی پائلٹ اڑا کے لے کے جا رہے ہیں جو حامد گردیزی، جن کو کل گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کا پی آئی اے کے ذرائع کے مطابق ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ واپس کر دیا گیا اور ان کے پاسپورٹ وہ اپنے اسی پاسپورٹ پہ سفر کرتے ہوئے ان کو کلیئر کر دیا گیا ہے، جبکہ باقی عملہ بھی جو ہے پی آئی اے ذرائع کے مطابق اس کو بھی کلیئر کر دیا گیا اور ان کے پاسپورٹ آج شام تک مل جائیں گے اور وہ عملہ جو ہے وہ کل اپنی فلائٹ شیڈول کے مطابق لے کر پاکستان چلا جائے گا۔ برطانوی بارڈر ایجنسی اور نیشنل کرائم ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ طیارے سے ہیروئن برآمد ہونے سے متعلق برطانیہ اور پاکستان میں پی آئی اے حکام کو آگاہ کر دیا گیا ہے، لیکن قومی ایئر لائن نے ایسی کوئی بھی اطلاع ملنے کی تردید کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا واقعہ نہیں ہوا، اس لیے کہ پیسنجرز کو بھی تکلیف ہوئی، پی آئی اے اور پاکستان کو جو ہے وہ کوئی اچھا نام نہیں ملا اس سے۔ ہمارے پاس ابھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، میں ابھی میڈیا میں ہی آپ کی باتیں سن رہا ہوں۔ ابھی ہمیں نوٹیفائی نہیں کیا گیا ہے کہ جہاز سے ان کو کچھ ملا یا نہیں ملا۔ جب ہمارے پاس ان کی نوٹیفیکیشن آ جائے گا تو پھر میں اس کے اوپر کمنٹ کروں گا۔ اگر ہمارا کوئی یہ پیسنجر جو ہے وہ رکھ کے چلا گیا یا اگر ہمارا کوئی آدمی انوالوڈ ہے تو ہی ول بی ٹیکن۔ دیگر اہم خبریں شامل کرتے ہیں۔ شمالی وزیرستان کی تحصیل دتا خیل اور جنوبی وزیرستان کے گاؤں پنگی پری خیل میں انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشنز کیے گئے ہیں۔ بڑی مقدار میں ایس ایم جیز، اینٹی ایئر کرافٹ گن، راکٹس اور گرینیڈز برآمد ہوئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے اسلحہ اور گولہ بارود کو زیر زمین چھپایا گیا تھا۔ اور اب بات کے گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال سے ملکی تجارت کو جھٹکا ہے۔ کراچی بندرگاہ پر پھنسے کنٹینرز کی تعداد 70,000 سے تجاوز کر گئی، ٹرمینل آپریشن معطل ہو کر رہ گیا۔ انتظامیہ نے مزید بحری جہازوں کو ٹرمینل پر نہ آنے کے لیے خط لکھ دیا ہے۔ مختلف اقسام کی دالیں، مسالہ جات اور خشک دودھ کے ہزاروں کنٹینرز پھنس کر رہ گئے۔ گورنر ہاؤس کے ذرائع کے مطابق گڈز ٹرانسپورٹ کے روٹ پر عدالتی حکم کی غلط تشریح کی گئی، جلد قانونی حل نکلنے کا امکان ہے۔ کراچی میں گڈ ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کو 9 دن ہو گئے، مگر حیرت انگیز طور پر اس انتہائی سنجیدہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ حالت یہ ہے کہ بندرگاہ پر پھنسے ہوئے درآمدی اور برآمدی کنٹینرز کی تعداد 70,000 سے آگے نکل چکی اور کنٹینر ہینڈلنگ کی گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ برآمدی سامان کی بروقت ترسیل نہ ہونے سے ایکسپورٹرز کو روزانہ 6 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے، جبکہ درآمدی خام مال مقامی فیکٹریوں تک نہ پہنچنے سے کراچی سمیت ملک بھر میں صنعتی پیداوار کا عمل بھی شدید متاثر ہے اور صنعت کاروں کو خطیر مالی نقصان ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال ایک طرف ملکی معیشت کے لیے نقصان دہ ہے تو دوسری طرف عالمی سطح پر بھی برآمدی شعبے کی ساکھ داؤ پر لگ سکتی ہے۔ دوسری طرف اس مسئلے کو حل کرنے کے بجائے جگاڑ کا سہارا لیا گیا ہے اور وقتی طور پر تجارتی اور صنعتی سامان کی ترسیل بذریعہ مال گاڑی کی جا رہی ہے۔
रेलवे जराये का कहना है कि यौमिया 10 मालगाड़ियाँ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के लिए रवाना हो रही हैं। गुड ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बाइस कराची की बंदरगाह पर मुख्तलिफ अक़साम की दालों, मसालों, खुश्क दूध, चाय की पत्ती समेत दीगर जरूरी खुर्दनी अशिया के 200 से ज्यादा कंटेनर्स भी फंसे हुए हैं, जिनसे रमजान के दौरान खुर्दनी अशिया की किल्लत पैदा होने का खदशा है। अच्छी खबर ये है कि गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर से गुड ट्रांसपोर्टर्स की मुख्तलिफ एसोसिएशंस की वफ्द ने मुलाकात की है। उनका मुतालबा है कि शहर के तीनों तयशुदा रूट्स पर रात में गुड ट्रांसपोर्ट को चलने की इजाजत दी जाए। गवर्नर ने ट्रांसपोर्टर्स के तमाम जायज मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के असरात पर ही बात करेंगे अपने नुमाइंदों से। सबसे पहले बात करेंगे कराची से जियो न्यूज के नुमाइंदे अली इमरान सैयद से। अली इमरान, 9 दिन हो चुके हैं इस हड़ताल को, कितना नुकसान हुआ है अभी तक? क्योंकि सिर्फ हफ्ते को ही कराची पोर्ट्स के वकील ने कहा था कि 4 बिलियन का नुकसान तो हो चुका, उसके बाद 4 दिन गुजर गए हैं, अभी तक नहीं पता कब ये मसला हल होगा। जी बिल्कुल, ये भले से नेशनल हाईवे पे टोल टैक्स की मद में जो ट्रकर्स पैसे देते हैं उसके नुकसान की बात हो, ट्रकर्स बहुत बड़े पैमाने पे डीजल इस्तेमाल करते हैं, उस पर सेल्स टैक्स की मद में हुकूमत के एक्सचेकर के नुकसान की बात हो, एक्सपोर्ट जो डेली अरबों रुपए की होती हैं और इसी तरह इंपोर्ट पे जो ड्यूटीज होती हैं, तो ये मिलकर ठीक ठाक 10 अरब रुपए का बिल बन रहा है, जो कि कौन सा नुकसान हो रहा है। लाहौर में जियो न्यूज के नुमाइंदे जवाद मलिक से। जवाद, मुल्क में सामान की नकलो अमल रुकी हुई है, लाहौर और गिरदनवा की मार्केट्स में इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, आज इस हवाले से अहम इजलास हुआ था लाहौर चैम्बर में, जिसमें ताजर बरादरी, सनतकार और गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अहदेदार आज सर जोड़ कर बैठे थे। जो कंटेनर आते थे 3 से 4 हज़ार, बाज़ों का 6 हज़ार तक, वो नहीं पहुंच रहे, तो मार्केट जो ड्राई होना शुरू हो गया। खासतौर पर होता है कि जो रॉ मटेरियल है वो नहीं पहुंच रहे, केमिकल्स जो कि हर चीज में, फूड आइटम में और बाकी चीजों में इस्तेमाल होते हैं, वो नहीं पहुंच रहे। उसके अलावा उन्होंने बताया कि जो ड्राई फूड होता है, यानी ड्राई आइटम होती है फूड की, वो भी नहीं आ रही। तो इस हवाले से कहा है कि अभी 1, 2, 3 दिन तक तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। इसके बाद हम आज भी हम आए हैं, चैम्बर सड़कों पर आए हैं, और कल से हम आइंदा अमल का ऐलान करेंगे। इस्लामाबाद की सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदे जियो न्यूज सैफुर रहमान से। सैफुर रहमान बताएगा, इस्लामाबाद में ग़िज़ाई अशिया की किल्लत का खतरा तो नहीं? और देखिए, इस्लामाबाद और रावलपिंडी की कारोबारी बरादरी के मुताबिक गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जो हड़ताल है कराची में, गुड्स शहरों में बहुत इसके जुड़वा में बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। दरामदी माल जो है वो फंस चुका है, सनतों के लिए खाम माल कम पड़ गया है, सप्लाई ऑर्डर डिले होना शुरू हो गए हैं, और उनका ये कहना है कि कारोबार ठप होने लगा है। तो ताजर बरादरी ने ये कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि जितनी जल्द हो सके, चूंकि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पहले बहुत कम है और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी 26 अरब डॉलर से ज्यादा है। तो एक डेवलपमेंट ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि वजारत तिजारत के जराये के मुताबिक सेक्रेटरी तिजारत यूनुस ढागा ने अटार्नी जनरल ऑफिस से राब्ता किया है, क्योंकि ये सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बुनियादी तौर पर हड़ताल की गई है। तो अटार्नी जनरल ऑफिस से ये कहा गया है कि इस मामले को हल करवाने के लिए मदद की जाए, क्योंकि इसके मुल्क पर बहुत ज्यादा बुरे असरात मरतब हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान। और अभी आपको ये बताएं कि पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय 1.5 होशियारियां बेनकाब कर दी। भारतीय वकील कुलभूषण जाधव को मदद देने वाले 13 भारतीय हुकाम का जिक्र गायब कर गए थे। पाकिस्तान के वकील खावर कुरैशी ने 13 भारतीय हुकाम की तफसील छुपाने से अदालत को आगाह कर दिया। पाकिस्तान ने 23 जनवरी को भारत से इन्हीं 13 भारतीयों के बारे में मालूमात मांगी थी। 13 भारतीय हुकाम कुलभूषण से फोन पर राब्ते में रहे, उसके बैंक अकाउंट में रकम डलवाते रहे। The court has been given an indication, moreover, that there was some request for evidence made by the Pakistani authorities, but all that the court was given was the cover letter in the annexures. Unfortunately, the court was not provided with the substantive material which was given to India on the 23rd of January 2017, but it has now. In the judge's folder at Annex 1, the court will see that the material comprised a cover letter which identified 13 names that Commander Jadhav had provided to the Pakistani authorities. The cover letter sought the assistance of the Indian authorities to the phone records of Commander Jadhav. It sought the assistance of the Indian authorities to bank account details. These are all perfectly reasonable, legitimate requests. The Indian authorities were provided with a copy of the first information request, the details of the allegation, Annex 1. Annex 2 was a copy of the passport.
Now, interestingly, at no stage has India made any comment about the possession of a passport by an individual whose nationality as an Indian national has been assumed, we say de bene esse, but has not actually been established by the Indian authorities. और अभी आपको बताएं कि हैंगजू में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मारूफ ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ई कॉमर्स में अलीबाबा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की खिदमत काबिले तारीफ। जनवरी में अलीबाबा ग्रुप के चेयरमैन से होने वाली मुलाकात मुफीद साबित हुई। IT के फरोग से डिजिटल ट्रांजैक्शंस में मदद मिली है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में IT शोबे को फरोग दिया है। It is an immense pleasure for me to visit the headquarters of the Alibaba Group. I am very glad that my meeting with Mr. Jack Ma at the World Economic Forum in January this year has come to fruition in the shape of the MOU that we are signing today. While I take this opportunity to admire the spectacular success of the Alibaba Group over such a short period, I would like to add that I am as impressed to visit these premises as I was happy to meet Mr. Jack for the first time in Davos. अभी आपको एक ब्रेकिंग न्यूज है। पाकिस्तान कस्टम्स ने PIA के तैयारे में मनशियात की तहकीकात शुरू कर दी हैं। किस तरह से तहकीकात की जाएंगी, बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, बहुत बड़ी खबर नहीं है, क्या करेगा पाकिस्तान कस्टम्स इस हवाले से? जी, पाकिस्तान कस्टम्स ने अभी इब्तदाई इंटरनल इंक्वायरी की है और उसमें हमारी जो मुतलका हुकाम से बात हुई है उसके मुताबिक ये बात उन्होंने वाज़ेह तौर पर कही है कि उनकी जो इब्तदाई तहकीकात है उसमें ये बात वाज़ेह है कि ये काम किसी मुसाफिर का नहीं है। ताहम उनका ये भी कहना है कि तहकीकात का बाज़ाब्ता आगाज सिर्फ उसी वक्त किया जा सकेगा जब बरतानिया की तरफ से तमाम मालूमात उन्हें फराहम की जाएंगी। और देखना ये है कि इस मामले में जहाज के कौन से हिस्सों में मनशियात छुपाई गई थी। हमें ज़राए ने ये भी बताया कि जो PIA का मुतलका जहाज था उसमें और हर जहाज में एंटी नारकोटिक्स फोर्स ASF का स्टाफ भी जाता है और PIA का स्टाफ भी जाता है। तो शायद ये भी इस बात का इम्कान भी है कि जब बरतानिया से मालूमात मिले तो एक मुश्तरका तहकीकाती टीम इसकी तहकीकात करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सदर थाने में दर्ज मुकदमे में अनीस कायम खानी, रजा हारून समेत 11 अफराद नामजद। DIG साहब ने कहा है कि मुकदमा हंगामा आराई और दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि एहतजाज जमहूरी हक है, मगर पाक सरजमीन पार्टी ने बच्चों और खवातीन को कानून तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि मुस्तफा कमाल अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बनने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों और खवातीन पे अगर उनको इस्तेमाल करेंगे आप लॉ ब्रेक करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? वो जिम्मेदार है, मैं नहीं हूँ, इंतजामिया नहीं है। कमेंट आप करते हैं, साइन आप करते हैं, उनके इफ्तिखार साहब थे, और आगे खवातीन और बच्चों कहते जाओ भाई ये तोड़ो। ये बहुत ही नामुनासिब था। और उसके बाद कल जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे वो बैठे हुए एक टीवी शो में मैंने देखा, वो उन्हीं पे सजती है। अल्ताफ हुसैन 2 मैं कहूँगा पता नहीं बन रहा है कि इनकी मेकिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। बिजली के ब्रेक डाउन से जिला बस्ती के इलाके मुतासिर हुए हैं। मलीर हॉल, रफायाम और अलफला सोसाइटी में भी सुबह 6 बजे से बिजली बंद। शाह फैसल टाउन में भी बिजली को गायब हुए 7 घंटे हो चुके हैं। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि हब के करीब NTDC ग्रिड में तकनीकी खराबी के बायस सप्लाई मुतासिर हुई, बहाली का काम जारी है। और सूबे में तवील दौरानी की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे के लिए अपोजिशन और हुकूमत ने करारदाद मुश्तरका तौर पर मंजूर कर ली। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि बिजली के बिलों पर सियासत न की जाए, हुकूमत सिंध पर 1 पैसा भी वाजिब अदा नहीं है। उधर मुजफ्फरगढ़ की अदालत ने मनशियात फरोशों को अनोखी सजा सुना दी। 2 मनशियात फरोशों को 1 साल तक शहर की सड़कों, गलियों और नालियों की सफाई करने का हुक्म दिया गया। मुजरिम कैसर अब्बास और फयाज हुसैन को ये सजा तहसील अलीपुर में एडिशनल सेशन जज मोहम्मद फवाद आरिफ ने 15 अप्रैल को सुनाई। अदालत ने चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी को सजा पर अमल दरामद से मुतालिक हर 15 दिन बाद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया है। और भक्कर में बच्चे को काटने पर असिस्टेंट कमिश्नर की अदालत ने कुत्ते को सजाए मौत सुना दी। कुत्ते के मालिक ने सजाए मौत के खिलाफ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की अदालत से रुजू कर लिया है। कुत्ते के मालिक जमील का कहना है कि मुतासिरा बच्चे के वर्सा ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर वो 1 हफ्ता जेल काट चुका है। अब कुत्ते को सजा देना इंसाफ के खिलाफ है।
तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने सोशल मीडिया पर इल्जाम लगाया है कि वजीर आजम के मामले खसूसी तारिक फातमी को नहीं हटाया गया, वो तो वजीर आजम के साथ चीन गए हुए हैं। ताहम वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इल्जाम की तरदीद करते हुए तस्वीर को भी जाली करार दिया। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि जिनका लीडर ही बगैर तहकीक के इल्जाम लगाता हो उसके तर्जुमान भी बहतान तराशी ही करेंगे। उनका मकसद इदारों के दरमियान तसादुम है। ने कौमी असम्बली में कहा, अगर तारिक फातमी को कौमी सलामती के मुनाफिक दाम पर हटाया गया तो वो चीन में सरकारी वफ्द के साथ क्या कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नईमुल हक और शीनी मजारी ने सोशल मीडिया पर दावा कर दिया कि तारिक फातमी भी साथ हैं। वजीर मुमलिकत इत्तलात मरियम औरंगजेब ने PTI के सीनियर रहनुमाओं के दावे की तरदीद कर दी। एक पुरानी तस्वीर को उनके दोनों तर्जुमान ने ट्वीट किया जो कि बहुत ही अफसोसनाक है, और उसके बाद उन्होंने डिलीट किया क्योंकि इमरान खान साहब जो है बगैर तहकीक किए बात करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं, इसीलिए उनके ऑफिशियल तर्जुमान भी वही काम करते हैं। और अभी बात के लंदन एयरपोर्ट पर रोके गए कौमी एयरलाइन PIA के कप्तान हामिद गर्देसी का कहना है कि उनके साथ तौहीन में सलूक किया गया। 5 से 6 घंटे तन्हाई में रखा गया। मानशियात के बारे में उन्हें कुछ इल्म नहीं, तमाम सूरत हाल से आला हुकाम को आगाह कर दिया है। 4-5 एयरलाइंस के वो भी आए थे पीछे से बसें, बट हमें बहुत उन्होंने ह्यूमिलिएट किया। वो आइसोलेशन होती है, हिरासत नहीं होती, उन्होंने हिरासत नहीं की, आइसोलेशन में वो उनका एक ऑफिस है, जैसे अमेरिका में आप जाएं इमिग्रेशन के पीछे लेफ्ट साइड पे दफ्तर होता है, तो उधर बिठा दिया था उन्होंने। प्लेन का तो मुझे नहीं पता, मुझे आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द प्लेन। जब हम उतर गए थे प्लेन से तो उसके बाद तो फिर व्हाट दे हैव डन इन द एरोप्लेन आई डोंट नो। चेकिंग करते हैं नहीं, हमें देखें उस वक्त ये होता है कि हमारे पास एक नारकोटिक का परफॉर्मा आता है और डिफरेंट एजेंसीज को क्लियर करके देती है, साइन हुआ होता है, उनके नाम लिखे होते हैं, दैट इज ऑन द एरोप्लेन। जी वो डायरेक्टर फ्लाइट ऑपरेशन का फ़ोन आया था और उन्होंने सारी बात सुनी, डायरेक्टर फ्लाइट सेफ्टी का भी, और उनको सारा बता दिया गया था। तो इट्स ऑल इन द हर नॉलेज में है, बट इसको परसू करें कि ये अच्छी बात नहीं है। जंग ग्रुप के ज़रिए तमाम पाकिस्तान की सबसे बड़ी 2 रोज़ा द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो इस्लामाबाद में शुरू हो गई। इफ्तिताह वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब ने किया। एक्सपो कल भी जारी रहेगी। जंग ग्रुप के ज़रिए एहतमाम इस्लामाबाद के पाक चैनल सेंटर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी 2 रोज़ा द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो शुरू हो गई। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने नुमाइश के इफ्तिताह और मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। ये जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन है जो आज यहाँ एजुकेशन एक्सपो के जरिए जंग ग्रुप ने मुनक्किद कराई है, मैं जंग ग्रुप को मुबारकबाद देना चाहूंगी। तुलबा का कहना था कि वो इस तालीमी नुमाइश में न सिर्फ नए कोर्सेज से मुतारिफ हुए हैं बल्कि मुल्की और आलमी मार्केट में नए मौके से भी आगाही हासिल कर रहे हैं। सब यूनिवर्सिटीज यहाँ आती हैं, स्टूडेंट्स उन्हें पर्सनली विजिट करके पर्सनली सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटीज ऐसे हमें चांसेस नहीं देते। बिगेस्ट एजुकेशन एक्सपो है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स हैं। 2 रोज तक जारी रहने वाली द न्यूज एजुकेशन एक्सपो में यूनिवर्सिटी तुलबा ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी नुमाइश में रखे, जिसमें शुरका ने खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद खाकान के साथ अयाज अकबर यूसुफ जियो न्यूज इस्लामाबाद। वजीर आला पंजाब ने पाकिस्तान एम्बेसी कॉलेज बीजिंग में कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला शहबाज शरीफ का कहना था कि 1 बेल्ट 1 रोड दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाने की तरफ बड़ा कदम है। CPEC के हवाले से गलत फहमियां फैलाने वालों को हकायक ने गलत साबित कर दिया। पाकिस्तान एम्बेसी कॉलेज बीजिंग में कंप्यूटर लैब की इफ्तिताई तकरीब में चीनी ज़ुबान सीखने वाले तलबा व तालबात और फैकल्टी मेंबरान ने भी शिरकत की। अपने खिताब में वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान एम्बेसी कॉलेज के लिए तमाम कंप्यूटर्स पंजाब हुकूमत ने दिए हैं। चारों सूबों के वज़राए आला ने यह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए सब मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला पंजाब से बीजिंग में चाइना रेलवे, नोरेंको और एग्जाम बैंक ऑफ चाइना के सदूर ने अलग अलग मुलाकातें की। इस मौके पर वज़ीर आला शहबाज शरीफ का कहना था कि ओनियन लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे ने पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के नए कल्चर की बुनियाद रख दी है। वज़ीर आला शहबाज शरीफ से बीजिंग में चीनी वजारत सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वफ्द ने भी मुलाकात की, जिसमें सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब से मारूफ चीनी कंपनियों हेवानिंग और TBEA के वफूद ने भी मुलाकातें की और पंजाब में तवानाई मंसूबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया। और अभी आपको खबर थी कि गवर्नर सिंध से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी नाकाम हो गया है। आपको इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। गवर्नर सिंध से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी नाकाम हो गया। बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अली इमरान सैयद से। अली इमरान, कोई हल नहीं निकला क्या?
जी बिल्कुल यही कहना है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर नूर खान नियाजी से अभी हमारी बात हुई है और उनका कहना है कि उन्हें ज़बानी कलामी नहीं बल्कि वाज़ेह शहर में एंट्री के अहकामात चाहिए हैं और वो क्योंकि नहीं मिले, महज यकीन दहानियाँ कराई गई हैं, लिहाजा वो ना काम शुरू कर सकते हैं ऐसी सूरत में और वो यही समझते हैं कि ये मुज़ाकरात जो हुए थे वो नाकाम हो गए हैं। लिहाजा अब 20 तारीख को जब कोर्ट में हेयरिंग होगी जब ही फैसला होगा और ये जो काम की बंदिश है या तिजारत की बंदिश है जो मुल्क की मईशत का हाल अभी हो रहा है तिजारत का खुसूसन, ये लगता है कि अभी मजीद कुछ दिन जारी रहेगा। शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में इंटरनेशनल रेसलिंग का पहला इवेंट कल कराची में होगा। रंग जमाने के लिए गैर मुल्की पहलवान भी पहुंच गए हैं। पाकिस्तान में पहली बार होने वाले प्रो रेसलिंग के मुकाबले का इफ्तिताही मेला कराची में लगेगा जिसमें 20 ममालिक के रेसलर्स शरीक होंगे। इनमें से बेशतर कराची पहुंच भी गए। प्रो रेसलिंग के मुकाबले इनफरादी और टैग टीम पर मुश्तमिल होंगे जबकि खवातीन रेसलर्स के दरमियान भी जोर आजमाई होगी। दूसरी जानिब इस इवेंट के इनेकाद के लिए कराची में KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तैयारियां आखिरी मरहले में हैं।